Yeah, revaluation account. Now this revaluation account is prepared because whenever there is a change in the partnership deed, okay, when the change is happening in the partnership deed, when the partner is admitted, when there is admission of a partner, or when there is a retirement taking place, or when there is a death of a partner, so obviously in these three cases, the profit sharing ratio of the partners are changing. The partnership deed clauses are changing. Partners are coming and partners are going from the business. Okay, so definitely there has to be reassessment of assets and liabilities in these cases. Okay, so these reassessment of assets and liabilities need to be routed to a special account which is known as revaluation account. Is this clear? अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट I come from outside now. ठीक है? So revaluation account का format देख लेते हैं quickly and then let's go ahead with question. Revaluation account का बहुत ही simple format है. Normal ledger आपका जैसे आप बनाते हो debit credit particulars rupees जैसा बनाना है. Okay? On the two side we write down assets and we write down liabilities. On the buy side also we write down assets and liabilities. तो मैम फर्क क्या है? दोनों साइड आपने asset और liability लिख दिया. Yes, Arisha? the assets in the two side is when the asset category is increasing, Oh. decreasing, and liabilities is increasing, and it's the opposite. Assets are increasing and liabilities increasing. Exactly. Okay. So this I can prove to you with the help of a journal entry. कि ऐसा क्यों हो रहा है? And then obviously we get the balancing figure. If the balancing figure is on the debit side, it will be to profit on revaluation, and this profit on revaluation is transferred to partner. Suppose A or B partner है तो A is capital account, B is capital account, like that. अगर लॉस है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन and you give it to the partners in their old ratio. कौन सी रेशियो में ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट या लॉसेस? रिवैल्यूएशन का ओल्ड रेशियो and not sacrificing ratio, because sometimes students are confused and they distribute revaluation profit loss also in sacrificing, but that's not allowed. Only goodwill is distributed in sacrificing ratio. Apart from goodwill, nothing else shall be distributed in sacrificing ratio. Why is this an old ratio? इसका भी logic है, because you are giving increase or decrease in assets and liabilities का जो भी profit losses है, you are giving it to the old partners, or you are taking it from the old partners, because old partners were involved in the business in the last financial year. Okay, तो उनकी old ratio में आपको distribute करना चाहिए. यहाँ पे new partner का कोई concern ही नहीं है. New partner will never come in the revaluation account. Clear है ये वो concept सबको? New partner को revaluation में नहीं लेना. So busy writing. बात बोल दो. Yes, no? Now there are two more entries which will come in revaluation, which is related to IFR and WCR. Okay, वो मैं आपको बाद में explain करूँगी when we do accumulated profit specific. Thank you. Okay, chalo come to the question. Let's do one question on this. Let's try to implement this format to a practical question. Question number. आज हमने रिश्ता बेसिक्स चालू किए. So अभी अभी हम इनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, फिर हम accumulated profits losses करेंगे, फिर हम partners capital account का format करेंगे, फिर जाके हम full length question So that is the basics of reval. Yeah. I gone through the end. Oh. तो उसके बाद आपने advanced question तो किए. Advanced question है, but उसके अंदर the basic Concept miss हो गया. concept I can understand. So the basic question है. Good, better for you. So do it after the plan. That's that.
5 प्लस तो बेयर मिनिमम किसी भी हालत में चाहिए होगा। चलो पहले इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। मैं आपको जर्नल एंट्री भी बताती हूँ। ये लेजर से ही हम जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 41 ऑल ऑफ यू। I'm sharing. Let's pass these journal entries first. Okay. Look at the screen, all of you. Now tell me, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताइए। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? Assets account to revaluation. Exactly. Assets account debit to revaluation. अभी हम लेजर से जर्नल इजीली बना सकते हैं। Now we are good with that, right? बाय वाला डेबिट करना है आपको जर्नल। और आप देख सकते हो हम एसेट को डेबिट कर रहे हैं। You know it very well. Assets carry debit balance. So obviously when there is an increase in an asset, you have to debit it. तो asset को हम increase कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं। Simple. Okay. अब एसेट को डिक्रीज करने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? What about this one? Revaluation to assets. Exactly, revaluation to asset. तो हमने two assets क्यों किया? Because there is a decrease in the asset. Whenever there is a decrease in the asset, you credit it. Okay. Similarly, for liabilities, इसकी एंट्री क्या बनेगी? Two liabilities जो आपने लिखा है, revaluation to liabilities. Liabilities carry credit balance. तो liability को अगर मुझे increase करना है, तो मुझे उसको credit करना पड़ेगा. So that's why we are crediting it in order to increase it. Yes. And what about this one? Liabilities to revaluation. Why are we debiting liabilities? Because we want to decrease liabilities. Liabilities carry credit balance. तो अगर मुझे उसको decrease करना है तो उसका reversal करना पड़ेगा. Okay, it's not maths plus minus कर दो. Accounts में debit का credit और credit का debit होता है जब आपको plus minus करना पड़ता है, जब आपको increase decrease करना पड़ता है. Clear? चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 41। Pass journal entries to record the following transactions on the admission of a new partner. Stock is undervalued by 10%. Stock की जो book value है वो है 54,000. बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में आपको स्टॉक कितनी वैल्यू पे दिख रहा है? 54,000। और ये जो 54,000 है ये 10% से अंडर वैल्यूड है। इसको कैसे करना? देखो बोर्ड पे, ये जो 54,000 है दिस इज वैल्यूड एट 90%, दिस इज वैल्यूड 10% लेस। लेकिन हमें तो 100% पे वैल्यू चाहिए ना स्टॉक की, तो 100% के लिए कितनी वैल्यू बनेगी? टेल मी, क्रॉस मल्टीप्लाई, टेल मी क्विकली। 54,000 into 100 divided by 90, 60,000। परफेक्ट, 60 आएगा। तो 54 से अगर मुझे 60 पे जाना है तो मुझे स्टॉक को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा? 6,000। यू हैव टू इंक्रीज स्टॉक बाय 6,000। तो एसेट को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय एसेट अकाउंट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए स्टार्ट, मेक अ जर्नल। ओके, फर्स्ट एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Okay, you will have to show this working, how you're getting 60,000. And then over here, we write down 60,000 minus 54,000, which is 6,000. Okay, so increase in the value of stock is recorded. Clear है? Increase in the value of stock recorded. Alright, now identify the second one. Stock is undervalued by 10%. Book value है 66,000. और ये जो book value है 66,000, ये कितने के लिए है?
ओवर वैल्यू बाय 10%, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखा है वेरी गुड, दैट इज 110%, परफेक्ट। तो 110% के लिए आपकी बुक वैल्यू कितनी है 66,000, बट मुझे तो 100% के लिए चाहिए ना, वी ऑलवेज वांटेड फॉर 100%। हमें ना 90% चाहिए ना हमें 110% चाहिए, हमें हमेशा बैलेंस शीट में जो वैल्यू चाहिए 100% चाहिए। ओके, अगेन मल्टीप्लाई 100 into 66,000 divided by 110, 60,000। ओके, तो अब आपको कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, अब आपको 6,000 से डिक्रीज करना पड़ेगा स्टॉक, डिक्रीज कर दीजिए, स्टॉक को डिक्रीज करेंगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री, एग्जैक्टली रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, सो दैट सिंपल। अगर आपको आज फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया, आपको अगले 3 चैप्टर के लिए रिवैल्यूएशन समझ आ गया। फर्स्ट लेक्चर नहीं समझा तो बैठे रहो अगले 3 चैप्टर्स के लिए। शी डिडंट अटेंड द फर्स्ट लेक्चर, शी वाज स्ट्रगलिंग इन द एंटायर 3 चैप्टर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। I got आप धीरे ग्रेजुअली ऑब्वियसली वो सीख जाते हो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, बट कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट लेक्चर में ही बता देना पड़ेगा, राइट? दिस आई नॉट टीच अगेन एंड अगेन ना, तो एक बार सिखा दिया तो सिखा दिया। ओके, यू कैन राइट डाउन द रिलेशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड और स्टॉक डिक्रीज्ड। चलिए थर्ड वन, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख है, तो आपको 4 लाख से 5 लाख पे जाना है, तो कितने से, बाय हाउ मच विल यू इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा आप बाय रिकॉर्ड करते हैं, कितने से डिक्रीज करना है, कितने से इंक्रीज करना है, बाय हाउ मच यू वांट टू इंक्रीज, बाय हाउ मच यू वांट टू डिक्रीज। इंक्रीज 2 वाली वैल्यू कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाती, जो इंक्रीज 2 वाली वैल्यू होती है वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में जानी चाहिए। ओके, सो बाय वाली वैल्यू जो है that will go to evaluation, that is the main concept of evaluation. Okay, so 1 लाख से इंक्रीज कर दीजिए, चलिए राइट डाउन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू evaluation अकाउंट 1 लाख, गो अहेड, चलो ट्राई ऑन योर ओन एवरीवन। वो नीचे वाला भी सेम नंबर बाय लिखा है, उसका मतलब क्या? उतने से ही बाय लिखा मतलब उतने से ही, increase by 5 lakh. एग्जैक्टली, मतलब 9 पूरा का पूरा तो पूरा 5 लाख से इंक्रीज कर दो और न्यू बैलेंस शीट में 9 लाख पे लिखा, 9 लाख पे लिखिएगा। तो वही तो मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी ना कि 2 वाली वैल्यू हमारी न्यू बैलेंस शीट में जाती है, बाय वाली वैल्यू हमारी हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। ओके, कर दीजिए फोर्थ वन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5 लाख, बाय 5 लाख, so your new value in the new balance sheet will be 9 lakh. Perfect. Go ahead. नेक्स्ट वाला अब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएंगे, पहले 4 जो थे वो सेम तरीके के थे, नाउ look at the fifth one, I'll help you out. A debtor whose due of rupees 40,000 was written off as bad debt last year paid rupees 30,000 in full installment। तो ये इस बंदे ने हमें लास्ट ईयर पैसा नहीं दिया था, तो मैंने क्या किया, जाके मेरी बुक्स में 40,000 को बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया, बट इन द नेक्स्ट ईयर ही गेव 30,000, उसके पास पैसा आ गया तो उसने दे दिया अगले साल, एंड दैट हैपेंस यूजुअली विद कस्टमर्स, इट्स वेरी नॉर्मल इन बिजनेस। ओके, सो 30,000 उसने जब मुझे दिया तो तब हम क्या एंट्री करेंगे, यू डोंट हैव टू पास एंट्री फॉर बैड डेट, यू हैव टू पास द एंट्री फॉर बैड डेट रिकवर्ड। सॉरी, You have to cancel off the bad debt. नहीं बैड डेट, नो नो नो, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री 11th में क्या सीखी थी, दिस इज कमिंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। Bad debts recovered to the बैड डेट रिकवर्ड डेबिट नहीं हो सकता, इनकम है, इनकम है क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा। एग्जैक्टली, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये हमने सीखा था 11th में। सेम एंट्री गोना पास नाउ, एंड दिस बैड डेट्स रिकवर्ड यू गोना ट्रांसफर, वेयर यू गोना ट्रांसफर टू द वैल्यूएशन अकाउंट। ओके, 2 एंट्री आएंगी यहाँ पे। चलिए फर्स्ट वन, पहले पैसा ले लो, बैंक से रूट कर देते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 30,000।
debts. Recovered account debit. Reverse the bad debts to revaluation account. To revaluation account 30,000. Transfer these bad debts, reverse these bad debts and transfer it to revaluation. So on the revaluation, buy side will transfer buy bad debts recovered. Okay. An old customer whose account was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000. Okay, promised to pay. तो promise to pay में क्या आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर करोगे, बट लेकिन आपका जो 15,000 का एक ओल्ड कस्टमर का बैड डेट राइट ऑफ हुआ था, क्या आप उसकी एंट्री करोगे? नहीं, right. प्रॉमिस कर रहे हो एग्जैक्टली, वो प्रॉमिस कर रहा है तो क्या? ओके वेट, आई टेल यू समथिंग. देखो, जब आपको पैसा आ जाता है कि मतलब पहले आपने बैड डेट राइट ऑफ किया, ओके, और अब आपको बैड डेट की रिकवरी हो गई, तो ये एंट्री आप डायरेक्टली कर सकते हो. दिस विल नॉट इम्पैक्ट योर डेटर्स एट ऑल, दिस विल नॉट इम्पैक्ट योर बैड डेट्स एट ऑल. बट अगर आपका डेटर बोल रहा है कि मैं आपको कुछ दिनों में पक्का पैसे लाके देता हूँ, तो आप जो 31 मार्च को न्यू बैलेंस शीट बना रहे हो उसमें आप अपने डेटर्स को बढ़ाकर दिखाओगे, बिकॉज दैट डेटर हैज प्रॉमिस्ड टू पे यू. सो you will no more keep him as a bad debt in your books of accounts. You will increase that particular debtor. Because if you want to increase that particular debtor, आपको क्या करना पड़ेगा? Debtor is your asset. तो आपको asset account को debit करना पड़ेगा, debtor के account को increase करना पड़ेगा. Like once we have received the money. So that time it will be bank to debtor. Bank to debtor. He has promised to pay. देखो, जब आपको इमीडिएट पैसा आता है तब आप सीधा बैड डेट रिकवरी में डाल देते हो, लेकिन जब डेटर आपको बोलता है कि मैं पक्का आपको पैसा दूंगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, दैट इज द टाइम व्हेन यू इंक्रीज योर डेटर्स एंड कीप इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थिंकिंग दैट देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग दिस पर्टिकुलर मनी. सो दोनों ही जगहों पे आपकी एंट्री डिफर करती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर करता है. सो ओवर हियर यू सिंपली इंक्रीज योर डेटर्स एंड शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. You will say debtors account debit to revaluation account 15,000, और फिलहाल आप यहाँ पे बैड डेट रिकवरी की एंट्री नहीं करोगे क्योंकि आपको पैसा नहीं आया. When you are not receiving the money, you cannot debit bank account. बैंक अकाउंट तो तभी डेबिट होगा ना जब बैंक में पैसा आएगा, कैश में पैसा आया है. Till the time you don't receive the money, you cannot debit your cash or bank. You're making him a debtor again. Yeah, you're making him a debtor again. जो हमने पहले राइट ऑफ किया था वो वापस से इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, वो 25,000 के बदले में हमें 15,000 देने वाला, तो हमने 15,000 से इंक्रीज कर दिया. हमने जब बैड डेट राइट ऑफ किया था, जब हमने बैड डेट टू डेटर किया था, दैट वाज द टाइम वी डिड इट एट 25,000. नाउ व्हेन वी आर रिवर्सिंग द डेटर्स, वी आर रिवर्सिंग एट 15,000 and not 25. तो 10,000 हमें फिर भी नुकसान हो ही है. That's our loss. We have to bear it. हमें उल्टा ऐसा सोचना चाहिए चल जितना पैसा आ रहा है उतना ही अच्छा है. You think it that way. ठीक है? चल. Look at the next one. A computer purchased on 1st October for rupees A liability for claim included in creditors for rupees 20,000 is settled at 16,000. 20,000 की क्रेडिटर की लायबिलिटी है, आपको क्रेडिटर को 20,000 रुपीज पे करने थे, लेकिन आप क्रेडिटर को 16,000 पे कर रहे हो. So what about the remaining 4,000? That 4,000 is your loss, which you're going to recover from revaluation account. Okay, so reverse your creditors. जब आप creditors को पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री करते हो? Creditors to bank. आप क्या करोगे? देखो, creditors को आप कितने से रिवर्स करोगे? How much do you owe him? You owe him 20,000. How much are you paying him? We are paying him 16,000. तो देखो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? 4,000. तो वह कहाँ जाएगी बैलेंसिंग फिगर? To revaluation. Okay, so revaluation you will decrease your creditors by 4,000. Revaluation में आप देखोगे buy creditors 4,000. Please buy creditors 20,000 मत लिख देना revaluation में. That's not allowed. Okay? तो revaluation के सामने का अमाउंट है वही revaluation के लेजर में जाना चाहिए. Alright, got it? आगे बढ़ते हैं. चलो आज गेट बंद करें. A computer purchased on 1st October 2022 for rupees 40,000
डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, तो आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर बाय किया था। इफ यू हैव बॉट अ कंप्यूटर यू सपोज टू डेबिट कंप्यूटर अकाउंट, बट व्हाट यू आर डूइंग इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कंप्यूटर अकाउंट यू डेबिटिंग ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। मतलब आप कंप्यूटर को भी डेबिट कर सकते हो, आप ऑफिस इक्विपमेंट को भी डेबिट कर सकते हो, बट आप ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं कर सकते। दैट्स नॉट अलाउड, दैट हैज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट। तो कह रहे हैं कि आप उसको करेक्ट कीजिए, उसको अकाउंट में लेके आइए एज ऑन 31 मार्च एंड देन यू टेक द डेप्रिसिएशन बेनिफिट आल्सो ऑफ दैट। ठीक है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लेंगे, दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद योर इवैल्यूएशन अकाउंट, वो तो बैलेंस शीट में आप दिखाओगे। ओके, बट अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, अभी हम इवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो इसका इवैल्यूएशन से क्या लेना देना? So it will be computers to office expenses and You don't have to show the reversal of the office expenses. You don't have to show the creation of depreciation. All that is not required. You simply have to show the increase in the value of asset. आपका evaluation किससे impact होगा? आपका evaluation तो asset के increase से impact होगा ना, क्योंकि आप books में computer को लेके आ रहे हो। तो जब आप books में computer को लेके आ रहे हो, you have to increase your asset. When you increase your asset, you debit your asset. Computer or office equipment account debit to revaluation account। आप यहाँ पे गुडविल वाला चैप्टर नहीं करेंगे, आप जाके प्रॉफिट करेक्ट करोगे, नॉट करेक्टिंग योर प्रॉफिट्स कि अच्छा हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, चलो लेस करके डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लेते हैं। ओके, हमने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया, चलो ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देते हैं। नो, नथिंग लाइक दैट। यू आर नॉट डूइंग गुडविल, यू आर नॉट करेक्टिंग योर प्रॉफिट्स, you are taking the impact of assets and liabilities in revaluation. बस ये revaluation है। कितना कितने का था ये कंप्यूटर? ओके, बट वन सेकेंड ना, अब जब आप ऑफिस इक्विपमेंट जो रिवैल्यूएशन करोगे, रिवैल्यूएशन में क्या आप बुक वैल्यू कंसीडर करोगे 40,000 की, या इस पे डेप्रिसिएशन माइनस करके कंसीडर करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस करके आप एसेट को इंक्रीज करोगे। ओके, नेट वैल्यू पे इंक्रीज कीजिए, ग्रॉस वैल्यू पे मत इंक्रीज कीजिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट? 40,000। ओके, and what is the rate of depreciation here? 10%. What is the date of purchase of this asset? 1st October. So from 1st October to 31st March, how many months? 6 months. So 5%. हम कौन से साल में हैं ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपने लिया 22 and 23 का बेनिफिट। 22 और 23 में कितना डेप्रिसिएशन आया? 2000। और हम कौन से साल में हैं? 23-24, मतलब एक बार और लेना पड़ेगा। तो 40,000 में से 2000 लिया तो WDV कितना बचा? 38,000। अब इस पे वापस से 10% लीजिए फॉर द एंटायर ईयर। कितना? नहीं, I want a value. 3,800. So the total depreciation is 5,800. 40,000 minus 5,800 will give you 34,200. Okay, so we have to check the date very carefully. कि अगर पिछला साल है तो फिर आपको obviously last year and this year 2 साल का बेनिफिट देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। If it was 1st October 23, then you would have taken 6 months, है ना? ठीक है? चलो next. Forget the office expenses. No need to provide for that. Furniture appearing in the books of rupees at rupees 50,000 is taken over by partner Sahil for rupees 30,000. साहिल ने अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? पहली बात तो आपको एसेट को डिक्रीज भी करना पड़ेगा। कितने से डिक्रीज हो रहा है एसेट? 20,000। और जो पार्टनर इस एसेट को टेक ओवर कर रहा है आपको उसकी एंट्री भी दिखानी पड़ेगी। ओके, सो राइट डाउन ऑन टॉप ऑफ द नोटबुक व्हेनेवर पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट द जर्नल एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। Partners capital account debit to asset account. Partners capital account debit to asset account. Partners
ठीक है, ये हो गया एसेट टेकन ओवर की एंट्री। लेकिन एसेट की वैल्यू में इंक्रीज भी तो है, तो वो भी आपको इवैल्यूएशन के थ्रू रूट करना पड़ेगा। सो 2 जर्नल एंट्रीज तो भी रहता। फर्स्ट वन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर? साहिल। सो साहिल्स capital account debit, and which asset are we talking about? Furniture. तो furniture account कितने से फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है? बाय 20,000। बाय वाली वैल्यू पे फोकस करना है। ओके, राइट डाउन द नरेशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड, सॉरी टेक ओवर ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड। फर्नीचर टेक ओवर की एंट्री है। नाउ डिक्रीज इवैल्यूएशन to furniture. Now we got decrease in the value of furniture by 20,000. Okay, so ultimately see how much are you crediting your furniture with? 2 furniture 30, 2 furniture 20। तो आपने फर्नीचर कितने से क्रेडिट कर दिया? 50। तो ये 50 पे ही क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि आपकी बुक में फर्नीचर 50 पे दिख रहा है। So you this has to total up to 50,000. This doesn't total up to 50, that means you're making some mistake. Is that clear? So अगर फर्नीचर डेबिट में 50 दिख रहा है और पार्टनर अगर उसको टेक ओवर कर रहा है तो क्रेडिट में भी 50,000 ही दिखना चाहिए। Is that clear everyone? Come to the last one, 10th one. Expenses on revaluation amounted to 15,000, out of which 10,000 are paid by partner Kunal and the balance was paid by the firm. आपको रियलाइजेशन अकाउंट याद है? रियलाइजेशन में जब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे ऑफ करता था तो हम क्या करते थे? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली यू विल डू रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और जो पैसा फर्म खुद के पॉकेट से पे कर रही है दैट विल बी टू बैंक। जो पार्टनर टेक ओवर करता है टू पार्टनर, जो फर्म पे करती है टू बैंक। राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to Kunal's capital account. Kunal is the name of the partner. Remaining to bank account. कितना है टोटल? 15,000. कुणाल कितना टेक ओवर कर रहा है? कुणाल कितना पे कर रहा है? 10,000. तो हम पे करेंगे 5,000. Okay, write down the narration. Expenses on revaluation partially paid by Kunal and partially paid by firm. Okay, next. Illustration 43 we will do revaluation account, partners capital account. Okay, in partners capital account in illustration 43 we are only doing opening balance, goodwill का related entry, revaluation का related entry. That's it. We are not doing full length partners capital. Full length partners capital I teach you in the next lecture. अभी जितना अभी तक हमने सीखा है let's apply that to a full length question. So illustration 43 पे आ जाओ, हो जाएगा आराम से in 15-20 minutes. हाँ, I'll send you. Illustration 43. See, they've given that the following balance sheet of Anurag and Bhavna, who were sharing profits in the ratio of 2/3 and 1/3 as of 31st March is given to you. 2/3, 1/3 का मतलब what is the ratio? 2:1. 2:1, correct? Balance sheet दे रखी है आपको. Liabilities, assets. So this balance sheet is a very simple balance sheet. This doesn't have any accumulated profits, accumulated losses, goodwill, nothing. कुछ भी नहीं है इसमें. Okay. On 1st April they agreed to admit Monica into partnership. The 1st April 2024 को Monica आ रही है business में. अब ये जितने भी नीचे एडजस्टमेंट एंट्री है ये हमें एक एनालाइज करना है. ओके, लेजर पूछा है तो लेजर में जाके पोस्ट करना है, जर्नल पूछा है तो जर्नल में डालना है, दोनों पूछे तो दोनों में डालना है. नीचे देखो सबसे लास्ट में और व्हाट आर द आस्क्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल. तो पहले जर्नल एंट्री पास कर देते हैं एंड देन लेट्स ट्रांसफर देम टू इवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल. सो लेट्स डू वन एडजस्टमेंट. चलो आ जाओ. All these entries will be done on
2024 1st April when Monica is being admitted. Look at the first entry A. A क्या है? Monica was to be given 1/3 share in profit. So Monica's share is 1/3, and she's bringing 15,000 as capital and she's bringing 6,000 as her share of goodwill. चलिए मुझे एंट्री बताइए. कैपिटल लेके आने की और गुडविल लेके आने की क्या जर्नल एंट्री होती है? स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ. चलो रिकॉल. आरएम तुम देखेंगे लास्ट लेक्चर में. बताओ. जब पार्टनर पैसा लेके आता है, कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, तो क्या एंट्री करते हैं? तो प्रेजेंट डिवाइस. Right, so partners capital is reserved to premium for goodwill. एग्जैक्टली. देखो जब अपने पन्ने पलटो क्या किया था, राइट? बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल इफ यू कंबाइन इट. और अगर आपको अलग अलग करनी है तो अलग अलग कर लीजिए. बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल. चलिए राइट नाउ प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो, भूलना नहीं है. टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट to premium for goodwill account. Write down the full form, okay? Premium for goodwill. चलो कितना पैसा लेके आ रही है टोटल? 15 plus 6 15,000 as capital and 6,000 as her share of goodwill. So you don't have to remove her share of goodwill. It is already given to you. Read the narration. Capital and goodwill brought in by new partner. Now what you're going to do? ये जो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया है इसको आप रिवर्स करेंगे और आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. याद है? चलिए लिखिए फिर. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 to who are the old partners? So to Anurag's capital account, to Bhavana's capital account. Okay. ये जो 6,000 है आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो? You're supposed to distribute this in sacrificing ratio. Are we given with new ratio so that we can find out sacrificing ratio? Sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. क्या sacrificing ratio दी new ratio दी है? नहीं दी है. देखो जब भी आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दी, मैंने आपको उस दिन क्या नोट लिखवाया था? ओल्ड रेशियो आपकी. So sacrificing ratio will be old ratio itself. Don't sit and calculate new ratio and then sacrifice. You will land up getting 2:1 and you're simply wasting your time. Try करना तो कर. Seriously, आप घर जाके try कर सकते हो. 2:1 ही आएगा घूम फिर के. तो जब भी आपको new ratio नहीं दी है, simply take old ratio as sacrificing ratio. तो 6,000 को 2:1 में करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा? 4,000 and 2,000. Write down the narration. Goodwill distributed in old ratio और oblique sacrificing ratio. चलो आर्यन लिखो. क्या सोच रहे हैं? कोई और आके पढ़ने लिखने वाला है? वेट कर रहे कोई जिन आ जाए मेरे दिमाग में लिखते. ठीक है? So 2 entries for capital and goodwill always. और अगर यहाँ पे withdrawal होता तो withdrawal की एंट्री भी आ जाती. या अगर यहाँ पे ये बोला होता कि पार्शियल पैसा वो लेके आ रहा है, पार्शियल पैसा नहीं लेके आ रहा, तो पार्शियल पैसा जो वो नहीं लेके आ रहा दैट ही वुड हैव टेकन फ्रॉम हिज करंट अकाउंट. तो वो सब भी आपको याद रखना है. ऑल दैट कैन आल्सो बी देयर. अब ये थोड़ा सा मैंने सिंपल ही रखा है. चलिए आगे देखिए. डी स्टॉक की वैल्यू और मशीन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दैट इज सपोज्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. तो कर देते हैं 10% से रिड्यूस थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट. राइट डाउन. नेक्स्ट एंट्री बी. जब एसेट को रिड्यूस करते हैं तो क्या करना है? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी. टू साइड पे लिखोगे ना. रिडक्शन इन एसेट इज रिटन ऑन द टू साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो भी हमने पढ़ा है रिवैल्यूएशन, अब उसका लॉजिक लगाइए, उसका कॉन्सेप्ट लगाइए. टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी. अमाउंट कितना आएगा? जाके बैलेंस शीट से पिक करें. स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 20,000. So 20,000 into 10%, 2,000. Similarly, what is the value of plant and machinery in the balance sheet? 35,000. 35,000 into 10%, 3,500. So 3,500 plus 2,000 gives us 5,500. We can write down decrease in the value of stock and plant and machinery recorded. Decrease in the value of assets recorded as we accepted shortly.
Okay. That a provision of 5% was to be created for doubtful debts. 5% आपको provision create करना है. बताओ provision कैसे create करते हो? और provision किस पे create करते हो? याद करो. अपने 11th standard के basics. Obviously provision हम debtors पे create करते हैं. Debtors में से हम new bad debts minus करते हैं and whatever remaining amount is there on that you create new RDD, new provision. है ना? तो यहाँ तो bad debts है क्या? देखो जाके नीचे एक बार. D, E, F adjustment में by any chance if they've given you bad debts? नहीं. Okay. तो directly हम debtor की value पे ले सकते हैं. debtor की value कितनी है? 9700. So 9700 into 5%. करो calculate कितना आता है? 485. इतना आपको provision create करना पड़ेगा. Provision is a liability. तो अगर liability आप create कर रहे हो तो evaluation में 2 side पे record करोगे कि by side में? Yes. 2 side, increase in the liabilities 2 side. So revaluation account debit to provision for doubtful debts. ऊपर वाली एंट्री में हम मर्ज भी कर सकते थे, बट चाहिए तो हम अलग से भी कर. Revaluation account debit to provision for doubtful debts. So this is 9700 into 5%, है ना? Yeah. So how much is that you said? 485. Okay. Chalo, next. That the building account was to be appreciated by 20%. बताइए building अगर appreciate होगा तो building को buy ले side में debit करोगे? Okay, या credit करोगे. Building account debit. Whenever there is an increase in the asset, you debit the asset to the valuation account. Building को कितना से debit करना है? 20% से appreciate करना है. So 50,000 into 20%. 5 2s are 10 and 10,000 से appreciate उसको कर लीजिए. Okay, write down the narration. Building appreciated by 20%. So next. Investments worth rupees 1400, which is not considered in the balance sheet, were to be taken into account. Investments को कर दीजिए accountability. Investment की accountability करोगे तो क्या entry होगी? Investment to revaluation. Increase the asset. Investments account debit to revaluation. कितने से increase कर रहे हो? 1400. आ रहा है सबको समझ? इजी. वो स्टेप बाय स्टेप एक एक जर्नल एंट्री आपको सोचते जानी है फॉर एवरी एडजस्टमेंट. चलो नेक्स्ट. दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विथड्रॉन. आगे विथड्रॉवल की एंट्री ऊपर नहीं दी थी उन्होंने, यहाँ पे दे दी. चलो कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लेते हैं. विथड्रॉवल की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. परफेक्ट. सो अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Bhavna's capital account debit to bank account. Okay, कितना पैसा withdraw करने बोल रहे हैं? They haven't said anything, मतलब they're going to withdraw the entire amount, है ना? तो 426 पूरा का पूरा पैसा withdraw कर लेंगे. अगर लिखा होता 50% तो we could have made it to half, but they haven't said anything, so we'll just withdraw the 100% money. Write down the journal entry. Goodwill withdrawn by old partners. Goodwill withdrawn by old partners. That's it. खत्म. अब इसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है. चलो पोस्टिंग तो आप खुद ही कर सकते हो, तो आती है आपको. यस ऑल ऑफ यू. चलो जर्नल से लेजर में पोस्ट कीजिए. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालिए और पार्टनर्स कैपिटल का टू बैलेंस कैरी डाउन निकालिए. ओके. रिवैल्यूएशन का 5415 प्रॉफिट आना चाहिए. जर्नल एंट्री में जो भी आपने डेबिट किया रनिंग ओवर टू द बायर साइड, जो भी आपने क्रेडिट किया वो टू साइड. बायर में क्या क्या जाएगा? बायर में बिलिंग एंड इन्वेस्टमेंट. एग्जैक्टली. ये मेरा एंट्री होगा प्रॉफिट. हाँ, प्रॉफिट की भी एंट्री करने पड़ेगी हमें. राइट, करने वो लेजर बनाने के बाद ही आप कर सकते हो. सो
look at this first one. Give 2 stock or 2 plant and machinery है तो 2 side पे लिखोगे. 2 provision for doubtful debts or 2 provision for doubtful debts. This is buy building and this is buy investments. That's it. Okay, so buy building, buy investments. 2 stock, 2 plant and machinery and 2 provision for doubtful debts. Correct? So the balancing figure you all will get here is 2 profit on revaluation. कितना आ रहा है? 5415. 5415 को आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स अनुराग एंड भावना ओनली. Okay. So Anurag's capital account and Bhavana's capital account only. Please do not give it to Monica. Okay. So next, partner's capital account. All the 3 partners will come in partner's capital account. Anurag, Bhavna, Monica. Anurag, Bhavna and Monica. Alright. सबसे पहले क्या लिखते हैं partners capital में? It's always opening balance. Opening balance is written as by balance brought down. What is the opening balance? 30,000 and 20,000. Is this clear? उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद जो भी आपके partners capital के related adjustments है, that you're going to write down. So देखो कौन-कौन सी adjustment है? Look here. Back to Monica's capital. Look, मोनिका जो कैपिटल लेके आ रही है, मोनिका कितना कैपिटल लेके आ रही है? 15,000. So buy bank in Monica's column 15,000. Write down. Buy bank in Monica's column 15,000. Clear? Then let's go to the next journal entry. Premium for goodwill to Anurag to Bhavna. So buy premium for goodwill. Anurag के column में 4,000, भावना के column में 2,000. Like that. Okay. Individual partners, individual column. You'll have to consider. So buy premium for goodwill 4,000, 2,000. Clear up till here? Okay. Next journal entry after that. This relates to revaluation totally. Okay. Withdrawal. Anurag, Bhavna. To bank. So to bank. Okay, you'll have to go and pass the journal entry for this one also. इसकी entry pass कर दीजिएगा. Revaluation account debit to Anurag's capital account to Bhavna's capital account. Give them the profit. इसकी भी journal entry आनी चाहिए. Okay. Revaluation की भी journal, revaluation की profit की भी journal entry pass कर देना. और जो रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो उसको पार्टनर्स कैपिटल में कैसे पोस्ट करोगे? बाय साइड, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. 3610 and that's it. Get the balancing figure for all the partners to balance getting down. For Anurag is 33,610 and for Bhavna is 21,805 33,610 is correct. and 21,805. 21,805 is also correct. And Monica will be 15.